as we have done trigonometry exercise number 11.1, exercise number 11.2, exercise number 11.3, as well as we have done few formulas and few identities related to our trigonometric. Okay, for that now we will going to solve the exercise number 11.4. as you can see on board I wrote exercise number 11.4, and the question you can see is as evaluate 1 plus tan theta plus secant theta into 1 plus cot theta minus cosecant theta. Student, the question here you are seeing that the question might be very easy, but really to solve this question really it is easy, but we need to apply few things here. We need to apply few formulas, as this kind of problem might ask you in your 4 marks. Why? Because I will tell you the reason why it might ask you in 4 marks. Now before solving this problem I want to write few formulas on the right of this board. You can see I make already rough column. Okay, first I want to write like sin theta. Yes student, what is sin theta? Sin theta we have opposite by hypotenuse. Okay, now I am writing cos theta. Okay, cos theta is nothing but adjacent by hypotenuse. Okay, now tan theta. Okay, tan theta, as you know that tan theta is nothing but sin theta by cos theta. Okay, which is equals to just hypotenuse get cancel, opposite by adjacent we left. Okay, now we have formula for cot theta. Okay, cot theta is equals to 1 by tan theta, that is just adjacent will go outside, it's become adjacent by opposite. Okay, now we have one formula like secant theta. Secant theta is nothing but 1 by cos theta. Okay, now this cos theta formula will go hide, that is fourth fraction, it becomes hypotenuse by adjacent. Okay, now we have one more formula like cosecant theta is equals to 1 by sin theta. Okay, then it's become like sin theta goes this side, it's become hypotenuse by opposite. Okay, apart from this we have few identities of trigonometric identities. I am writing the trigonometric identities also. Okay, you need to know that. Okay, the trigonometric identities we have like sin square theta plus cos square theta is equals to 1, and one more identity we have like secant square theta minus tan square theta is equals to 1, as you can see. Now we have one more identity like cosecant square theta minus cot square theta is equals to 1. We have 3 identities, we have this many formulas with us. Just I am revising the trigonometry what we have learned till. Okay, now after that we need few algebraic formulas also. For algebraic formulas I am writing the algebraic formulas here, you can see. Okay, one is like a plus b whole square is equals to a square plus b square plus 2ab. Okay, and one is a plus b into a minus b. Okay, a plus b, a minus b is nothing but a square minus b square. This algebraic formulas we have. Now I am going to solving this problem. Okay, first I am writing solve. Okay, in solve just we will write the question what it is given. 1 plus tan theta plus secant theta into 1 plus cot theta minus cosecant theta. Now I want to explain this thing something about our own language हिंदी. देखिए स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हो हमने ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर शुरू किया था. इस चैप्टर में हमने एक्सरसाइज 11.1, एक्सरसाइज 11.2 और एक्सरसाइज 11.3 हमने किया था. इसमें हमने कुछ फॉर्मूलेस लर्न किए थे. ठीक है, इसके बेसिस पे हमको एक्सरसाइज 11.4 सॉल्व करना है. जैसा कि आप जानते हैं कि आपके बोर्ड पे जो क्वेश्चन लिखा हुआ है एक्सरसाइज 11.4 का, दिखने में आपको बहुत सिंपल लग रहा. बेशक ये सिंपल भी है, बट आपको कुछ फार्मूलेस याद होना पड़ेगा. जो फार्मूलेस है मैं यहाँ पे राइट साइड पे आपके बोर्ड पे लिखा हूँ, आप देख सकते. ठीक है, साइन थीटा इज इक्वल्स टू ऑपोजिट बाई हाइपोटेन्यूस, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू एडजेसेंट बाई hypotenuse, tan theta is equals to sin theta by cos theta, which is equals to opposite by adjacent, cot theta is equals to 1 by tan theta, which is equal to adjacent by opposite, secant theta is equals to 1 by cos theta, which is equals to hypotenuse by adjacent. Okay, cosecant theta is like that only 1 by sin theta, which is equal to hypotenuse by opposite side. Now I wrote the trigonometric identities also, as you can see on the board. Sin square theta plus cos square theta is equals to 1, secant square theta minus tan square theta is equals to 1, cosecant square theta minus cot square theta is equals to 1. If you want to solve your exercise number 11.4, you need to know these formulas as well as these identities plus trigonometric formulas I wrote here. You can see a plus b whole square is equals to a square plus b square plus 2ab, a plus b into a minus b is equals to a square minus b square. ये फॉर्मूलेस अगर आपको याद होंगे तो ही आप एक्सरसाइज नंबर 11.4 ट्रिग्नोमेट्री की सॉल्व कर सकते हैं. ओके, अब हम थोड़ा सा क्वेश्चन की तरफ जाएंगे. नाउ स्टूडेंट,
आप देख सकते हैं मैंने क्वेश्चन लिख लिया था, फिर गिवन बोल के मैंने उसका जो क्वेश्चन दिया था वही करा था। नाउ हम सॉल्विंग प्रोसीजर करेंगे, ठीक है। सॉल्विंग प्रोसीजर में हमको क्या करना है, यहाँ पे आपको 1 का 1 एज इट इज लिख लेंगे। tan थीटा की प्लेस पे हमको क्या लिखना है, यहाँ पे आप देख सकते हैं sin थीटा बाई cos थीटा मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। मैं लिख सकता हूँ ना स्टूडेंट, tan थीटा की प्लेस पे प्लस सेकेंड थीटा की बदल में क्या लिखूंगा, जैसा कि आप सेकेंड थीटा का यहाँ फॉर्मूला देख सकते हैं 1 बाई cos थीटा है, ठीक है। लिख सकता हूँ ना मैं स्टूडेंट्स, कमान। तो ये मैंने लिख लिया। कैसा लिखा है, I change this step into this step. How I change, I will telling you once again, okay. One is as it is, in place of tan theta I wrote sin theta by cos theta, plus in place of second theta I wrote 1 by cos theta. Why I wrote, from these things, okay, from these two formulas, okay. Now same thing, one is as it is plus as it is, okay. In place of cot theta, what I will going to write, I will write like in place of cot theta 1 by tan theta, okay. And in place of cosecant theta, what I will going to write, like in place of cosecant theta 1 by sin theta, as you can see here. So this is, if you want you can write the formulas in this step, okay. Since, okay, since tan theta is equals to sin theta by cos theta, first formula we use, and second theta is equals to what we write, 1 by cos theta, and in place of cot theta what we wrote, in place of cot theta 1 by tan theta, and in place of cosecant theta what we wrote, you can see. So in place of cosecant theta what we wrote, like 1 by sin theta, okay student। ये जो स्टेप है आपको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सिंस, ये स्टेप अगर आप एग्जाम में लिखोगे तो एग्जामिनर बहुत खुश हो जाएगा, और ये स्टेप की ही हेल्प से आपको ने बोलेगा कि आपने कुछ जानते हो ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड, या दैट मीन्स you know something about trigonometry, he knows, and a good impression will falls on your correction inspector। जो आपको करेक्शन किया करता है एग्जामिनर, जो भी आपका लेक्चर है उसको बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। ये स्टेप तो हो गया हमारा। नेक्स्ट स्टेप मैं कर रहा हूँ स्टूडेंट, आप देख सकते हो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में भी थोड़ा सा चेंज रहेगा। यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में क्या चेंज है देखिए आप, मैंने ये इधर का जो लेफ्ट पार्ट है सेम लिख रहा हूँ, जैसा कि आप देख सकते हो 1 प्लस साइन थीटा बाई कॉस थीटा प्लस 1 बाई कॉस थीटा। यहाँ पे मेरे को थोड़ा सा चेंजेस करना है स्टूडेंट। tan थीटा की बदल में क्या लिखूंगा स्टूडेंट, कमान, tan थीटा के बदल में लिख रहा हूँ साइन थीटा बाई कॉस थीटा प्लस 1 बाई साइन थीटा हमारी जगह पे रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या करूंगा देखिए आप, 1 प्लस सेम इधर का स्टेप सही है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा एज इट इज जैसे का वैसे, और ये आपको रहेगा 1 प्लस कॉस थीटा एज इट इज। नाउ दिस इज 1 प्लस this cos theta goes this place, so what it's become cos theta by sin theta, okay, प्लस 1 बाई साइन थीटा अपनी प्लेस पे एज इट इज रहेगा, ओके। सो ये स्टेप मैं आपको फिर से बता देता हूँ स्टूडेंट, ये लेफ्ट साइड का पार्ट जैसा है वैसा था, 1 प्लस साइन थीटा बाई कॉस थीटा प्लस 1 बाई कॉस थीटा इंटू 1 प्लस यहाँ पे जो मैंने क्या किया है इन प्लेस ऑफ, यानी कि tan थीटा, पहले तो हमने sin थीटा बाई cos थीटा लिखे थे। नेक्स्ट स्टेप में क्या करें, ये cos थीटा फोर्थ फ्रैक्शन होके ऊपर चला गया, cos थीटा बाई sin थीटा प्लस 1 बाई sin थीटा हो गया। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक आपको कॉपी करना, ठीक है, क्या करना है कॉपी करना है, मगर ख्याल रहे कि कॉपी करने से पहले ये फार्मूलेस पक्का मार लो या समझो, इट इज अप टू यू, बट this is max, you are supposed to understood. As I said that with the help of 1-2 formulas we can derive all the formulas, just we need to mug up or butify 1 or 2 formulas, after that we can do all the things with us, okay. Now you need to copy down the problem from here to here, okay. Now I am going to continue this problem. Next step student, this step I didn't rough. Why I didn't rough this step means I have to do next step with the help of this, okay. Now you can see cos theta goes here, okay, and here also. As the cos theta goes here and here, the equation become like cos theta plus same as like cos theta, that is this become like cos theta 1 into cos theta plus this is sin theta plus this become actually 1. Why it's become 1? Because cos theta get cancelled, this remains with 1 by the whole divided by cos theta only. Till here you can understand, don't confuse the student yourself, just I am putting one arrow mark, as you can see 1 into cos theta is cos theta plus sin theta is as it is, no changes. Now here 1 into cos theta is nothing but cos theta by cos theta get cancelled, it remains like 1. Hope you understood. समझ रहे हैं स्टूडेंट, जैसा कि आप देख सकते हो ये cos थीटा 1 से इंटू होके cos थीटा बन गया, प्लस sin थीटा न्यूमरेटर अपनी जगह पे है, प्लस ये cos थीटा इससे इंटू हो गया तो cos थीटा बन गया था, लेकिन ये cos थीटा
कैंसिल होके 1 हो जाएगा। तो ये स्टेप ये आ गया। नेक्स्ट स्टेप हम देखेंगे साइन थीटा इनसे भी इंटू होगा, इनसे भी इंटू होगा, तो ये क्या हो जाएगा साइन थीटा प्लस ऊपर का कॉस थीटा न्यूमरेटर एज इट इज जैसा था वैसा रहेगा। ठीक है, यहाँ पे ओके स्टूडेंट, वन स्मॉल एरर आई डिड हियर, इंस्टेड ऑफ plus here you need to write in all the things minus, okay, because as you see that question belongs to the minus, so I think I remember you need to just change the sign with this step minus. So sin theta देखिए स्टूडेंट यहाँ पे मैंने गलती से प्लस लिख दिया था, हर स्टेप में आपको ये पार्ट आपको माइनस करना है क्योंकि क्वेश्चन में यहाँ पे माइनस है, शायद मैंने प्लस देख लिया था तो माइनस हो गया, तो माइनस जैसा है वैसा हम लिखेंगे। अब ये साइन थीटा इंटू 1 साइन थीटा हो गया था प्लस कॉस थीटा अपनी प्लेस पे कॉस थीटा था। ठीक है, नाउ ये साइन थीटा इससे इंटू हो जाएगा तो साइन थीटा बाई साइन थीटा हो जाएगा तो 1 हो जाएगा, तो दिस बिकम 1 डिवाइडेड बाई साइन थीटा एज इट इज। ओके, नाउ हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे स्टूडेंट, आप देख सकते हो। ठीक है, मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ कि आप पूरे जने बोलिए, ऑल ऑफ यू जस्ट टेल मी दिस, आई एम सपोजिंग दिस कॉस थीटा, फर्स्ट आई विल रीराइट दिस स्टेप। ओके, नाउ आई एम राइटिंग दिस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा लाइक साइन थीटा plus cos theta as you can see, and I am putting one bracket here plus 1 as it is by cos theta. Why I am putting bracket I will tell you in next step. Same case here as you see that sin theta plus cos theta, I am putting one bracket here. Why I am putting bracket? अब ये स्टेप आपको समझ में आ गया कि मैंने यहाँ पे ये दोनों को ब्रैकेट में ले लिया, sin theta plus cos theta plus 1 हो गया by cos theta, ये sin theta plus cos theta minus 1 by sin theta हो गया। तो देखिए स्टूडेंट यहाँ पे अभी ने अलजेब्रा के एक फॉर्मूले के फॉर्म में आ गया, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। तो अब यहाँ पे इसको a सपोज कर लेंगे, इसको b सपोज कर लेंगे, सेम इसको a इसको b सपोज कर लेंगे। तो a किसको सपोज कर रहा हूँ मैं, आप देखिए साइन थीटा प्लस कॉस थीटा क्या हो गया है, ये पूरा बिकम्स क्या हो गया है a हो गया, और 1 क्या हो गया यहाँ पे b हो गया, यहाँ पे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा क्या हो गया a हो गया, ये 1 आपका हो गया b। नाउ अभी हम फॉर्मूले का यूज करेंगे यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं। ठीक है, तो अब ये हो गया आपको साइन स्क्वायर, सॉरी नॉट स्क्वायर, साइन थीटा दैट इज साइन थीटा प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर, इट्स बिकम होल स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर बाई साइन थीटा कॉस थीटा एज यू कैन सी दिस स्टेप। Okay, once again I will explain you this step student, need not to confuse. I maintain the bracket like sin theta plus cos theta, here sin theta plus cos theta, this sin theta and plus cos theta whole term becomes as a, I will write here, you can see this part of the board, since sin theta plus cos theta is equals to a and 1 is equals to b, we know like we know what we know student, nothing, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, कुछ भी नहीं जानते। तो देखिए वी नो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ये फार्मूले की मदद से हम ये स्टेप लेके आए। तो स्टूडेंट अब आपको नेक्स्ट काम क्या करना है, यहाँ तक कॉपी कर लीजिए और ये स्टेप भी आप कॉपी कर लीजिए, आगे मैं बताऊंगा किस तरीके से हमको करना है। आई थिंक आई विल राइट वन मोर स्टेप हियर। ओके, one more step here I can write like we know one more formula we have with us like sin a plus b whole square is equals to a square plus b square plus 2ab। on the basis of this formula, इस फॉर्मूले के बेस पे हमको इसको ओपन कर लेंगे। यहाँ पे आप देखिए मैं साइन के बदल साइन स्क्वायर थीटा लिख लेता हूँ प्लस कॉस के प्लेस पे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2, a क्या है यहाँ पे साइन थीटा है और b है कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको ओपन कर लिया, माइनस 1 स्क्वायर क्या होता 1 होता बाई साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, ये कैसा करा मैं समझाता हूँ आपको। हमारे पास एक फार्मूला है a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इस फार्मूले के बेस पे किया हूँ मैं। यहाँ पे साइन a की बदल क्या है अपने पास साइन थीटा है, वेरस b की बदल क्या है हमारे पास कॉस थीटा है। अब आप इसको चेक कर लीजिए, जैसा कि a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a की प्लेस पे हमारे पास साइन थीटा है, बी की प्लेस पे कॉस थीटा है। विद द हेल्प ऑफ दिस आई रोट दिस एज लाइक साइन स्क्वायर थीटा, दिस मीन्स ए स्क्वायर मीन्स साइन स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर मीन्स कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 इज ऑन द बेसिस ऑफ फार्मूला, जो फार्मूले का 2 था वही 2 है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्या है साइन थीटा, दैट मीन्स ए की प्लेस पे मैंने क्या लिखा साइन थीटा और बी की प्लेस पे मैंने क्या लिखा कॉस थीटा, और उसके साथ साथ आप देख सकते हो ये जो 1 स्क्वायर है हमारा, वो 1 स्क्वायर क्या है सेम एज 1 इंटू 1 क्या होता 1 हो जाता बाई साइन थीटा कॉस थीटा है। स्टूडेंट यहाँ तक आपको कॉपी करना है। नेक्स्ट
और ये भी आप कॉपी करिए। ओके स्टूडेंट, होप आपने कॉपी किया होगा। नेक्स्ट स्टेप मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। आप देख सकते हैं हमारे पास एक आइडेंटिटी है, क्या है, साइन स्क्वायर टीटा प्लस कॉस स्क्वायर टीटा इज इक्वल्स टू 1। तो मैं इसकी पूरी साइन स्क्वायर टीटा प्लस कॉस स्क्वायर टीटा की प्लेस पे क्या लिख दूंगा, मैं 1 लिख दूंगा। उसके बाद जैसा कि आप देख सकते हो 2 साइन टीटा कॉस टीटा एज इट इज़ है, ये -1 है, बाई आपके पास क्या हो गया, साइन टीटा कॉस टीटा हो गया। ठीक है, यहाँ तक आप समझ रहे हो। अभी और थोड़ा सा स्टेप्स है, मैं कंप्लीट कर लेता हूँ। यहाँ पे इज इक्वल्स टू दिस +1 दिस -1 गेट कैंसिल, ये दोनों कैंसिल हो गए, बचा के अपने पास 2 साइन टीटा कॉस टीटा बाई साइन टीटा कॉस टीटा बच गया हमारे पास। तो ये साइन टीटा कॉस टीटा गेट कैंसल, द आंसर रिमेन इज एज यू कैन सी हियर, द आंसर रिमेन इज एज 2 is our answer. So student, I know that this problem has some formulas with us and it's look like somewhat complex. ये जो प्रॉब्लम है हमारे पास इसमें फॉर्मूले है और थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग रहा है। तो अब आपको क्या करना है, देखिए सब में पहला स्टेप ये है कि जो मैंने बोर्ड पे किया हूँ प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम सीक्वेंस वाइज स्टेप बाय स्टेप कॉपी कर लेके रख लीजिए पहली चीज़। ठीक है, वो कॉपी करने के बाद जो ऑलरेडी आपको नॉलेज पहले से थी, ठीक है, जो हम रिवाइज करे थे ये फार्मूलेस, थोड़ा आपके पेजेस पलटा के ये फार्मूलेस अच्छे से देख लीजिए। ठीक है, दूसरी चीज़। तीसरी चीज़, ये प्रॉब्लम को आप कम से कम 3 to 4 टाइम प्रैक्टिस कीजिए। यू नीड टू प्रैक्टिस दिस प्रॉब्लम एटलीस्ट 3 to 4 टाइम, you will get the perfection in this problem. If you practice 3 to 4 times, you will get the perfection. So this is our first problem. Okay, now we will continue with second problem. First you need to copy this. Okay, just now I think you hope copied from till here, you already copied. Just you need to copy 1 2 3 steps you need to copy. Okay, and this is an important rough column, you need to write this. Okay student, our next problem is, as you can see here, sin theta plus cos theta whole square plus sin theta minus cos theta whole square. First I am writing like this, given. Okay, given sin theta plus cos theta whole square plus sin theta minus cos theta whole square. So I wrote the as it is given. Now in this what we have to do, you need to just know the procedure how to do. Here we have 2 things important. First thing is you need to apply first algebraic formula. Just I wrote the algebraic formula here, as you can see, a plus b whole square is equals to a square plus b square plus 2ab. Okay, this formula you need to apply. After applying this formula, you need to apply this identity. That means 2 steps you need to do. First apply that formula, then this identity. After that the answer is come. So from the formula, here it is considered as a, it is b. Okay, it is a, it is b considered. So we know that formula. Okay, now we are using here 2 formulas. One is a plus b whole square. Okay, a plus b whole square is nothing but a square plus b square plus 2ab. Next formula we are applying a minus b whole square. A minus b whole square is a square plus b square minus 2ab. These 2 formulas we are applying. On the basis of this formula, देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे हम 2 formulas को अप्लाई कर रहे हैं। एक a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और एक a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इस फॉर्मूले की मदद से हम हमारे सम को आगे करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, ये नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या हो जाएगा। नाउ यू कैन सी द क्वेश्चन ऑन बोर्ड, सेकंड स्क्वायर थीटा माइनस 1 इंटू कोसेकंड स्क्वायर थीटा माइनस, वी नीड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ओके, नाउ स्टूडेंट, द क्वेश्चन you can see the question what you are getting in your mind. द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट, जैसा ही आपने क्वेश्चन देखा तो क्वेश्चन देखने के बाद आप अपने माइंड में क्या लेकर आ रहे हैं, यानी आपके माइंड को क्या समझने आ रहा है। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे ये 2 क्वेश्चन को हम डिफरेंट टाइप से सॉल्व कर सकते हैं। उसके 2 टाइप्स होते हैं। एक टाइप तो ये है स्टूडेंट, जैसा कि सेकंड स्क्वायर को हम बदल कॉस स्क्वायर में और कोसेकंड स्क्वायर को बदल सकते हैं साइन स्क्वायर में। ठीक है, उसके बाद -1 तो एज इट इज़ है, फिर उसके बाद सॉल्व करने पर हमको एक आंसर आ जाए। फिर और एक ईजी मेथड, ये तो आपको जो मैं बता रहा था वो थोड़ा सा लेंदी जाएगा, बट आंसर वही आएगा जो हमको, जो मेथड से मैं आपको बता रहा हूँ वही आंसर आएगा। तो अब मैं जो मेथड से आपको बताने जा रहा हूँ, यहाँ पे मैं आपको 2 आइडेंटिटीज़ का यूज़ कर रहा हूँ, आइडेंटिटी दिस एंड दिस। इसकी मदद से मैं लेकर आता हूँ और मैं आपको मेथड 1 मेथड 2 आई थिंक 2 भी बता देता हूँ। इट विल रियली गुड एंड knowledgeable for you. As you can see here, solve. Okay, solving this question. Okay, we know first we need to write given. Okay, what it is given? Given is nothing but second square theta minus 1 into cosecant square theta minus 1. It is given as this.
वी नो, ओके स्टूडेंट, वी नो, व्हाट वी नो स्टूडेंट, हम क्या जानते हैं बोलिए? कुछ भी नहीं जानते सर, दम नक्को करो, ये मालूम वो मालूम बोल के। फिर क्या पढ़े नहीं? जब से ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूलेस पढ़ा रहा हूँ, प्रॉब्लम करा रहा हूँ, प्रैक्टिस करो बोल रहा हूँ तुम लोगों को, फिर नहीं आया तो कैसा यार? हाँ, कौन जिम्मेदार? इफ़ यू डोंट नो दी थिंग्स रिलेटेड टू द ट्रिग्नोमेट्री, हु विल रेस्पॉन्सिबल स्टूडेंट? तो बहाने मत बनाओ, समझने ज़रूर आता, आपको थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करना होता है, थोड़ा सा याद रखना होता है। तो अब अपने पास वी नो दैट, व्हाट वी नो? वी नो फर्स्ट इज लाइक secant square theta minus tan square theta is equals to 1. From this you can see like secant square theta minus 1 is equals to tan square theta. How it is possible? Just I am explaining. Look at here, ये सेकेंड स्क्वायर थीटा अपनी जगह पे है, प्लस 1 को मैं इधर ला लिया तो क्या हो गया? -1 हो गया, इज इक्वल्स टू ये माइनस tan स्क्वायर थीटा उधर चले गया तो क्या हो गया? प्लस tan स्क्वायर थीटा हो गया। सेम केस, नेक्स्ट थिंग व्हाट वी नो, लाइक वी नो वन मोर आइडेंटिटी, मैं इधर ही लिखूंगा, बेटर रहेगा, लाइक कोसेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 है। सेम कोसेकेंड स्क्वायर थीटा अपनी प्लेस पे है, ठीक है, 1 को मैं इधर ले लेके आ गया तो ये -1 हो जाएगा। फिर ये कॉट थीटा माइनस कॉट थीटा अगर RHS पे चले गया तो कॉट स्क्वायर थीटा हो जाता। तो ये यहाँ तक आपको समझने आ रहा तो आप ये स्टेप कर सकते हैं स्टूडेंट्स, आ रहा आपको ये समझने? तो अब यहाँ पे आप देखिए, सेकेंड स्क्वायर थीटा -1 की प्लेस पे मैं क्या लिखूंगा? tan स्क्वायर थीटा लिखूंगा, सिंपल। सो व्हाट आई एम राइटिंग? tan स्क्वायर थीटा। नाउ इनटू, इन प्लेस ऑफ cosecant square theta -1 I will simply write like cot square theta. This is our step 2. Now step 3, tan square theta is as it is, cot square theta के बदल में क्या लिखूंगा यहाँ पे? 1/tan स्क्वायर थीटा। क्यों लिख रहा हूँ स्टूडेंट यहाँ पे मैं? एज यू कैन सी कॉट थीटा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, सिंस कॉट थीटा इज इक्वल्स टू 1/tan थीटा। हियर formulas are very important. tan square theta get cancelled, the answer will be, hope you understood. You need to just copy the problem from here to here. You need to copy these steps also, this and this and this. This might ask you in 2 marks or in 1 marks, but usually कभी 2 marks में पूछ देगा, कभी 1 marks में, और बहुत किस्मत अगर आपकी अच्छी है तो इट माइट आस्क यू इन 4 marks ऑल्सो। बट अगर ये 4 marks में अगर पूछेगा तो सिर्फ ये एक प्रॉब्लम ही नहीं पूछेगा, इसके साथ और एक आपको प्रॉब्लम उसके साथ अटैच करके पूछेगा। तो यहाँ तक आप कॉपी करीजिए, हम हमारी क्लास को आगे लेके चलें।